And Sri Ravi Shankar, in fact, has also tweeted. He's appealing to all parties to not politicize this entire festival. He says, and I quote, "I appeal to all parties to not politicize this event. It is to unite all cultures, nations, religions, and ideologies. Let's come together," unquote. So this, remember, has been his stand also right from day one. Now, significantly, he says that we must not politicize this entire event, and that is the appeal now coming in from Sri Ravi Shankar. But remember, even as we speak, the NGT is hearing the significant case now, and this event actually begins in Delhi starting this Friday. So essentially, it's the nth hour when the NGT is looking at this appeal that has been filed. Remember, now there are a lot of allegations here that there is a violation of a lot of environmental norms. Also, crucially, the question is that who has given permission for this large-scale event happening there? In the NGT, so I'll not speak till the decision. Our affidavit is already given. Environmentalists are saying the permission should have not have been granted for this. इसके बारे में, इस केस में जो एनजीटी ने हमसे एफिडेविट मांगा था वो आज दिया है। कानूनन स्थिति वो स्पष्ट की है। एक सबसे पहले सभी को ये स्पष्ट होना जरूरी है कि श्री रविशंकर जी एक ऐसे निर्विवादित संत हैं जो पूरे विश्व में मानवता के लिए, भारत के गौरव बढ़ाने के लिए पूरा काम करते हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये यमुना नदियां, हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर, उसके प्रति गौरव बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा हो, पर्यावरण में भी मदद हो, ऐसे सब बातों की शपथ लेने के लिए और भारतीय संस्कृति का दर्शन विश्व को कराने के लिए प्रोग्राम हो रहा है। दूसरा, नदियों का और संस्कृति का गहरा संबंध होता है, इसीलिए कई सांस्कृतिक परंपराएं नदियों के साथ जुड़ी है। कुंभ मेला भी होता है तो नदी के किनारे ही होता है। ये युगों से चला आ रहा है, युगों से चले आ रहे कुंभ मेले से भी आज तक कभी पर्यावरण को वैसे नुकसान नहीं हुए गए। और जहां तक ये नुकसान करने वाली बात आ रही है कि पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं, मैं वह उस क्षेत्र का सांसद हूं। उस यमुना नदी को सुप्रीम कोर्ट ने डर्टी ड्रेन कह दिया। किसने बनाई है डर्टी ड्रेन? आज तक के शासन ने क्यों इसको नदी रहने नहीं दी? उस पूरे किनारे के ऊपर इतना सारा इंक्रोचमेंट है, कंस्ट्रक्टेड इंक्रोचमेंट है। वो कंस्ट्रक्टेड इंक्रोचमेंट वहां पर आया कैसे? तब सब एक्टिविस्ट और ये कहां गए थे? वहां गार्बेज कलेक्शन सेंटर है बहुत बड़ा ओखला के अंदर, जिसका कचरा पूरा जाता है यमुना के अंदर। आज तक उसके लिए किसी एक्टिविस्ट ने आवाज नहीं उठा ली। 5 लाख लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है ओखला का, देख रहे हैं, उसका लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुके हैं, आज तक किसी एक्टिविस्ट ने आवाज नहीं उठाई। और एक संत जब एक झंडा लेकर के निकला है कि यमुना और बाकी नदियां, पर्यावरण, इसकी सुरक्षा, इसका सम्मान, संस्कृति का सम्मान, इसको लेकर के अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है तो ये एक्टिविस्ट बाहर निकल के आ रहे हैं। ये किससे प्रेरित है? कौन इनको भड़का रहा है? क्या ऐसी ताकतें पनप रही है या बढ़ रही है जो हमारे संस्कृति, हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए, विश्व स्तर पर जब गौरव बढ़ रहा है तो उसे रोकने का काम कर रही है? बहुत हास्यास्पद है ये बात। The army has been deployed, to make sure that things are in order here at Sri Ravi Shankar's event. How do you respond to that? There's been so much criticism that places where the army is needed is a shortage for deployment. Well, your question carries the answer within itself, but the whole matter is before NGT, and I think that the future of the event would depend upon how the NGT decides. Certainly there are environmental issues and there are other considerations also, and I think the government will need to specifically clarify its stand now that the matter is open and at large before the NGT. Do you feel that before giving permission there should have been a little more thought put into it, and there are others who are now coming out and saying that those who are opposing Ravi Shankar are anti-national? Well, this is a spurious debate going on in this country. If you don't agree with me or one point of view, then you become anti-national. I hope for the sake of the country, for the sake of our democracy, for the sake of our freedom, and I say so cutting across party lines and rising myself above party considerations, that such kinds of spurious definitions of nationalism are not doing justice to this country and to the people of it. देखिए, कानून व्यवस्था ये सब अपने विषय हैं, लेकिन मैं पर्यटन और संस्कृति मंत्री होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि इस आयोजन के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व के कोनों में शोकेस करने का हमें एक अच्छा अवसर मिला है। विभिन्न देशों से, देश के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं।
हमें उनका सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के जो सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जो पर्यटन और संस्कृति दोनों को जो बढ़ोतरी होने वाली है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि पर्यावरण और अन्य यही सुरक्षा व्यवस्था के जो भी विषय हैं उनको भी शाश्वत रूप से ध्यान देकर हमें इस आयोजन को आगे बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण या सुरक्षा की दृष्टि से बोलने के लिए एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैं नामित हूं, लेकिन एक पर्यटन और संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं चाहूंगा कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से जो भारत की संस्कृति का और भारत के पर्यटन को जो नई दिशा मिलने वाली है वो अपने आप में मैं बिल्कुल रहूंगा उस संस्कृति।